والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدقت يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سارے احباب مل کر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. درود ابراہیمی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قبل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ ہماری تمام تر خوشیوں کا تعلق وہ اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی ہمیں خوشی دینے والا بھی اللہ ہے اور ہمیں غم دینے والا بھی اللہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. ایک گل پکی ٹھکی ہے کہ سارا کچھ لبدا اللہ دے کھولو ہے. ولیاں نو بھی اللہ دیندا ہے تے نبیاں نو بھی اللہ دیندا ہے تے گناہگاراں نو بھی اللہ عطا کردا ہے. یہ گل حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جب ہر چیز ملنی ہے تو پھر اللہ نال تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالی اور بندے کا تعلق وہ ظاہر سی بات ہے گناہ کی وجہ سے جو ہے کمزور ہوتا ہے. گناہ بندے کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ادھر سے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے رب سے غافل ہو جاتا ہے. ہن جدو لبنا سی ادو غافل ہو گیا تو پھر غم تو آئے گا نا، دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی. جس مالک نے دینا تھا اس کی طرف جب توجہ ہی نہیں رہی تو پھر بندے کے لیے آزمائش تو ہے نا. مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ فلانی دکان سے گولی ملے گی، لے کے کھا لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ دنیا بھر دھکے کھا لے، اس دکان کے آگے سے چپ کر کے گزر جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کی اپنی غلطی ہے کہ جہاں سے اسے شفا ملنی ہے، خیر ملنی ہے، برکت ملنی ہے، ادھر اس کی توجہ نہیں ہے. تو میرے دوستو، ہمیں سب کچھ رب کے دربار سے ملنا ہے. کیونکہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر کا مہینہ بھی ہے. تو یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اولیاء اور انبیاء انہاں دا بھی کام بندے نو رب نال ملانا ہے. انہاں دا کام اے نہیں ہوندا بھی اللہ نو بھول جاؤ تو صرف ساڈا نام لئی رکھو. اے نبیاں تے ولیاں دا کام
नहीं, नबियां ते वलियां दा काम है टुटे हुए कनैक्शन जोड़ देना। यानी बंदे और रब दे दरमियान जेड़ा कनैक्शन है ना, जेड़ा बंदे ने तोड़ा है रब नहीं तोड़दा, क्योंकि रब तो है ही सारियां दा रब। अल्लाह ताला किसी दा कनैक्शन नहीं तोड़दा, बंदा खुद गफलत करदा है, तोड़ देंदा है। अल्लाह पाक ने नबी भेजे, साडे नबी ते नबूवत दा दरवाजा फिर उस तो बाद बंद हो गया। खत्म नबूवत हजूर दा मनसब है। उस तो बाद फिर नबी पाक दी उम्मत दे वली क़यामत तक नबियां वाला काम करते रहेंगे। मतलब गफलत वालों को राह दिखाते रहेंगे, परेशान लोगों की दस्तगीरी करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे कि अपने रब को भुलाना नहीं। मौलवी का काम भी यही है कि रब से बंदों को मिलाना, मुफ्ती का काम भी यही है, हाफिज का काम भी यही है, पीर का काम भी यही है। और इन्हां दा काम और कोई नहीं, इन्हां दा इक्को काम है बंदियां नूं रब नाल मिलाना। ते अगर मतलब एक बंदा बंदे नूं रब तो ही गाफिल कर देवे, फिर वो उस मनसब ते बाकी नहीं रहता। तो जो आज मैंने बात करनी है बड़ी अहम बात है, काबिल तवज्जो गुफ्तगू है। उसकी अहमियत के लिए ये चंद बातें पहले मैंने आपको अर्ज की हैं कि हमारी खुशियों का दारो मदार रब के साथ ताल्लुक पर है, और अल्लाह से ताल्लुक कमजोर करवाता है गुनाह। लेकिन कुर्बान जामा नबी पाक ने चूंकि कह दिया तुम्हारा रब तुम्हारी मां से ज्यादा तुमसे प्यार करता है, इन्ना प्यार करता है, इन्ना प्यार करता है तुसी सोच भी नहीं सकते। जिस तरह एक सहाबी रसूल का वाकया किताबों में मिलता है कि वो अपने चादर के पल्लू में चिड़ी के बच्चे पकड़ के हुजूर के सामने ले आया। उसमें चिड़िया भी थी, उसके छोटे छोटे घोंसले से बच्चे उसने उठा लिए और नबी के सामने इस तरह पल्लू में बांधे हुए तो आके रख दिए। और अर्ज करता है हुजूर माजरा बड़ा मैं अजीब देखा है। फरमाया क्या तुमने देखा है? कहा कि मैं घोंसले से चिड़िया के बच्चे उठा लिए, आदि चादर दे पल्लू विच रख दिते, फिर वो बच्चे क्यों वो उड़ तो सकते नहीं, वो मैं इस तरह चादर विछा दी और मैं हैरान रह गया कि इन्हां दी मां इन्हां दे उत्ते आके डिग पई। चिड़ी जड़ी सी वो इन्हां दे उत्ते आके डिग पई। मैं हैरान रह गया कि चिड़ी होके इनू पता नहीं कि मैनू भी ये बंदा पकड़ लवेगा। हालांकि जेड़े चिड़िया है या कोई भी परिंदा है वो पहचान जाता है कि बंदा मैनू पकड़ लवेगा, इसे पता नहीं कि ये मुझे भी पकड़ लेगा। अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं आका मैं हैरान रह गया कि चिड़िया अपने बच्चों के ऊपर आके गिर गई। मैं बच्चियां समेत चिड़ी नू पकड़ के तुहाडे को ले आंदा। और नबी पाक ने फिर जो बात कही ना, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम में किसी को शक होगा कि ये चिड़ी अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करती? ये मोहब्बत करती है। और फिर फरमाया लोगों सुन लो तुम्हारा रब इससे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। अब यही सारी बातें आज आपके सामने बयान करनी है। गुनाह ने हमारे ताल्लुक को कमजोर किया, बंदों के ताल्लुक को कमजोर किया, लेकिन चूंकि रब मोहब्बत करता है, रब तबारक व तआला ने हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा सुनिए बात और दिल के अंदर इत्मीनान पैदा कीजिए। अल्लाह पाक के नबी कहते हैं कि अल्लाह ने जब मखलूक पैदा फरमाई, मखलूक जदों रब ने पैदा की थी ना, फरिश्ते फरिश्ते हाली पैदा नहीं होए, कुछ पैदा नहीं होया। अल्लाह पाक ने जदों किताब नू पैदा फरमाया, कलम नू पैदा फरमाया, सब तो पहली गल उहदे ते पता की लिखी? सब तो पहली गल ये लिखी कि मेरी रहमत मेरे गजब ते हावी है। इन्ना रहमती सबकत गदबी, कि मेरा जिहड़ा गजब है, जलाल है, उहदे ते मेरी रहमत सबकत रख दी है, हावी है।
अल्लाह अकबर, मखलूक नू पैदा करन तो पहले ही सोने रब दियां मोहब्बतां वेखो, बंदों को पहले ही वो लिख दिया, अपनी किताब में लिख दिया। लोगों, तुमने खताएं करके इस ताल्लुक को कमजोर करना चाहा, तुमने छुप छुप के गुनाह करके खुद को बर्बाद करना चाहा, लेकिन तुम्हारे रब ने फिर भी फैसले कर लिए कि मेरे बंदो घबराना नहीं, खताएं कर ली हैं तो अब घबराना नहीं, मेरी रहमत मेरे गजब पर वसी है, अब भी मेरे दरबार में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, यही बात आज मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हमारी माँ से ज्यादा हमें हमारा रब चाहता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है हमसे वो इतनी रहमत के जो है वो दरवाजे हमारे ऊपर खोले रखता है कि मेरे बंदे मायूस ना हो, मेरे बंदे घबराएं ना, मेरे बंदे मेरे पास आए, मैं इनको नवाजूंगा, अता करूंगा, दरवाजा इनके ऊपर खोले रखूंगा। मेरे दोस्तों, आज जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में रबीउस्सानी का पहला जुमा हम आज पढ़ रहे हैं, और आज हम वली कामिल की इस महीने में पैदाइश है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। याद रखें, रब तबारक व तआला जिसने हज़रत अब्दुल कादिर को गौसुल वरा जितना अजीम मनसब अता किया है, तो ऐ लोगों, वो रब हमें भी मायूस नहीं करेगा, हमारे लिए भी उसने करम की, अताओं की और रहमतों की ऑफर बाकी रखी है। कोई झोली फैलाने वाला तो हो, कोई मांगने वाला तो हो, कोई आंसू बहाने वाला तो, कोई तड़प के पुकारने वाला तो। मां है ना, लफ्ज अम्मा सारे बोलते हैं, लेकिन दर्द में निकला हुआ लफ्ज अम्मा वो आप समझते हैं कि उसके अंदर कितनी तासीर होती है। यानी पीड़ हो रही होवे, फिर बंदा जदो आखदा ना अब मां मां, वो उस लफ्ज की तासीर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, मां भी तड़प उठती है। कोई तासीर में बुलाने वाला तो हो, किसी के रुखसारों पर यूं आंसुओं की लड़ी बह रही हो और फिर वो कहे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह। वो मैंने एक वाकया किसी खातून का किसी अखबार में पढ़ा, कहती है कि मेरा शौहर कहीं गुम हो गया, कई दिन तक नहीं मिला, छोटी जी बच्ची और मेरा बुढ़ा वालिद भी मेरे कोल रहंदा, कोई घर च और मर्द नहीं। कहती कि एक वक्त एक रोटी सारे वंड के खा लेंदे और राती भुखे सौ जाते आदे शौहर दे इंतजार च। वो माई लिखती है, एक रात ऐसे हुआ, बच्ची बीमार, सख्त बीमार हो गई, वालिद भी भूखा, और मैं औरत ज़ाद कहाँ जाती, रात का पिछला पहर है। कहते कि कोई सहारा देने वाला नहीं, आसरा देने वाला नहीं, दवाई भी नहीं, कोई सिरप भी नहीं, कोई गोली भी नहीं कि धीनू दे देवा ओनू आराम आ जावे। अल्लाह अल्लाह, ओ सोनिया रब्बा तेरे कम चंगे, तेरा ना चंगा, तेरी बारगाह चंगी। ऐ अल्लाह, जदों सारे सहारे टुट जाते हैं मौला, उदों तेरा ना सहारा बनता ही। अल्लाह, मेरा सोना रब कितना प्यारा है। वो माई आदि आप बीती लिखती है कि राती जदों मैं बेसहारा बेआसरा तड़पदी तड़पदी सोचा कि हुण इक्को ही सहारा है ते रब दा सहारा है। हुण किसी नूं फोन नहीं कर सकती कि घरी कोई फोन नहीं, किसी नूं सद नहीं मार सकती कि गरीबां दे सद्दियां दी कौन कदर करदा है, गरीबां दे सद्दियां दी कौन कदर करदा है। वो गरीबां दे सद्दियां दी तां रब कदर करदा है, मालिक कदर करदा है, नबी कदर करदा है। अल्लाह अकबर। ये जरा ठंडे दिल नाल गल सुनना और फिर जदों औखा वेला आवे ते रब नूं इस तरह पुकारना। वो माई लिखदी है कि मैं एक कपड़ा लिया, बच्ची बुखार नाल तड़प रही है, पानी च भिगोया, आदि बच्ची दे माथे ते ओ पट्टी रख दी ते खुद वजू करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नफलों च जदों हथ बन ले, अखां चो अथरू जारी, और उदू बच्ची दी तड़प, और फिर मां दा बिलकना। कह रहे दो नफल पढ़े, दो नफल पढ़ के
फिर पट्टी सुक गई, नवी पट्टी भरी और आदि बीमार बच्ची दे मत्थे ते रख दी। फिर नफलों च खड़ी हो गई। सारी रात इस तरह जदों अद्धी रात बीत गई, पट्टियां करदी रही ते नाल नफल पढ़दी रही, सोने रब नूं सद्दा देंदी रही, रब नूं पुकारदी रही। अद्धी रात बीत गई, किसी बंदे ने दरवाजा बजाया। जदों दरवाजा बजाया ते बाहर डॉक्टर खड़ा है, बाहर डॉक्टर खड़ा है। उन्हें आखा जल्दी दसो मरीज किदे है। कहते कि मैं हैरान रहेगी कि इस डॉक्टर नूं किन्ने दस्या भी साडे घर ही मरीज है। किदे है मरीज, किदे है? जल्दी जल्दी बच्ची नूं जो भी दवाई देनी सारा मर्ज वगैरह चेक किया और उस तो बाद एक पर्ची ते लिख दिता कि आ गोलियां लिया के इस बच्ची नूं खिला दो या सिरप लिया के पिला दो। और उस तो बाद कहने लगा है माई जल्दी कर मेरी फीस दे। वो माई परेशान आंदी डॉक्टर साहब साडे कोल तां रुपया को नहीं, रोटी आस्ते ते तैनूं फीस कित्थों देईए। लड़न लग पिया। आंदा माई मैनू फिर फोन क्यों किया, राती मैनू जगा दिते और मैं इन्ना औखा आया और हुण आखनी मेरे को फीस कोई नहीं। वो माई रो के कहती है कि डॉक्टर साहब साडे कोल तां फोन ही कोई नहीं, असी तुहानू फोन किदों करना। हुण अल्लाह पाक दे फैसले देखो। फिर उन्हें आखा ऐस ना तू फोन आया। वो माई कहने लगी अल्लाह के बंदे वो तो हमारा पड़ोसी है, बीमारी पड़ोसी के घर हुई, उसने बुलाया। लेकिन रब ने जिसने फोन किया है, जिसने खुद ताकत से बुलाया है, उसके दरवाजे पर नहीं भेजा, पहले वहां भेजा जिसने रब का दरवाजा खटखटाया था, जिसने अल्लाह का दरवाजा खटखटाया था, जिसने अल्लाह को अपना आसरा बनाया था। खुद मजबूर कर दिया तबीब को भी कि वो भूल के वहां पर गया। फिर वहां गया और उधर जाके जब वो मरीज चेक करके आया, दरवाजा बजाया और फिर आके वो खुद हैरान था कि मैं कैसे इनके घर चला गया। सियाना म्याना बंदा होता है ना डॉक्टर, मैं इधर किवें चला गया, हैरान रह गया। और फिर आके वो समझदार था, आके पूछता है माई अपना किस्सा बताओ, मामला क्या हुआ है। ये कोई आम बात नहीं है कि मैंने तुम्हारा मरीज चेक किया है और तुम्हें आके जो है ना वो चेक किया है और तुम्हें दवाई दी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे कदम फिसल कैसे गए हैं, मैं भटक कैसे गया हूं, मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहले क्यों आ गया हूं। तो माई ने कहा अल्लाह के बंदे मेरा मामला ऐसा है, शौहर गुम हो गया है, बच्ची बिलक रही है, घर में कोई सहारा नहीं था, आसरा नहीं था, कोई ले जाने वाला नहीं था, कोई दवाई लेके देने वाला नहीं था, बाप भी बूढ़ा तड़प रहा है, बच्ची भी तड़प रही है। तो मैंने जब सारे दरवाजे बंद पाए तो मैंने वजू करके रब का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मैंने रब का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मैं इधर अपनी बच्ची के माथे पर पट्टी रखती थी और उधर मैं नफल पढ़ना शुरू कर देती थी। अल्लाह अकबर। सच्चे दिल से सदा देने वाला कोई पैदा तो हो, पाक तबीयत से रब को पुकारने वाला कोई जमाने में आए तो सही। अल्लाह अकबर। ये बात याद रखिएगा, रब का ना नाम पुराना होता है ना दरबार पुराना होता है। ये बात आज लिख लेना दिल पर कि रब का ना नाम पुराना होता है ना रब का दरबार पुराना होता है। ये तो अक्लें पुरानी हो गईं, ये तो नए नए मकानों में बैठकर फिक्रें पुरानी हो गई, तसव्वुर पुराने हो गए, सोचें पुरानी हो गई। हमने असबाब को सब कुछ मान लिया, हमने मुसब्बिबुल असबाब को भुला दिया। जिसने सब कुछ करना था हम उसको भुला बैठे। अरे वो रब, वो करीम रब है बंदो, वो रहीम अल्लाह है, वो बड़ा मेहरबान अल्लाह है। और उसके करम के क्या कहने, उसके फजल के क्या कहने। ये एक आपको सच्ची बात बताई है कि जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो रास्तों का कश्फ करने वाला, खोलने वाला, रास्तों की तंगियां दूर करने वाला, फिक्रों को कुशादा करने वाला वो अल्लाह है। और ये बात याद रखना, कहीं ना कहीं तुझ में और मुझ में कमी है, कहीं ना कहीं पुकार में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे पैरों में कोई उलझन है। नहीं तो सुलझाने के लिए तो उसका नाम अल्लाह ही काफी है, लफ्ज़ अल्लाह ही काफी था।
जो उलझने दूर नहीं होती, कहीं तेरी तबीयत में उलझन आ चुकी है, कहीं फिक्रों को ताले लग चुके हैं। खोलो अपनी फिक्रों के ताले, आओ रब के पास। और याद रखना, कोई रब के दरबार का ना मैं मौलवी ठेकेदार हूं, ना कोई और ठेकेदार है। रब दा दरबार जिमें मां पुत्र ते बूए बंद नहीं कर दी, ओ बंदो तुम्हारा रब भी तुम पर कभी दरवाजे बंद नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। क्या समझ रखा है? अल्लाह का दरवाजा वो बंदों की मिसल नहीं है, अल्लाह का दरवाजा उमरा की मिसल नहीं है। उसका दरवाजा वो तो ऐसा है, वो जैसे किसी बाबे ने बात लिखी ना, एक चोर उचक्का बंदा चोरी करके नसा,